हम आपको बताएंगे हरियाणवी अंदाज में कि कनाडा और भारत में जो आतंकी निर्जर को लेकर टेंशन चल रही है उसको हम आपको समझा रहे हैं। तो भाई बात यह है, वो हरियाणवी में कहते हैं ना कि गन्ना पाड़ो और खेत तबार। ऐसा ही कुछ हमारे मोदी जी ने किया और उसके बाद कनाडा के पीएम किस तरह से मिमियाने लगे, इसको आप वीडियो में देख सकते हैं। Denied the allegation and expelled a Canadian diplomat. What's your reaction to that, and how confident are you in our intelligence with this denial? As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people to account. Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do that. उसके बाद समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, जो हमारे विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में बयां कर दिया। India has faced a lot of hypocrisy from a lot of countries since independence. So how far do we forgive and forget in this ever-changing geopolitics, and how do we make these decisions? Thank you. Forgive and forget. Do you forgive and forget? You should never forget. It's a big mistake. If you forget, you are not learning the lessons from it. If you forgive, it depends what you are forgiving. Some things I would never forgive. You know, if somebody attacked my city, if somebody violated my sovereignty, I would never forgive it. And I would never forget it. So, forgive and forget is nice in personal relations. I think nations need to have longer and better memories. रही सही कसर आतंकवादियों को हमारे पंजाब के शेर, जिनको जिंदा शहीद कहा जाता है, मनजीत सिंह मिट्टा ने पूरी कर दी। इस वीडियो को देखिए और मजे लीजिए। देखो, उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूँ। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर में प्लेटें हैं लोहे की, मैं गवाह हूँ। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बार बार कहता हूँ, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारा टूटा शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है। ये है, बोलो, ये आज का भारत है। संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। आप कौम के ठेकेदार हैं क्या? पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं, गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, पंजाब में 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। क्यों हुआ? उसके लिए व्हाइट पेपर जारी हो, इसका कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहूँगा, इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो। जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूँगा, जब भी खालिस्तान की मांग उठे, गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाएं, भाई बहनों को बुलाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। हाँ, जिस तरह से एम्बेसी के ऊपर हमला हो रहे हैं अलग अलग देशों में,
इसमें खालिस्तान एक सक्रिय रूप से बाहर आया है, किस तरह से लड़ रहे हैं? कि विदेश पॉलिसी जो हमारी है उनके ऊपर भी एक हमला? अरे क्या बात है, हमारी विदेश पॉलिसी दुनिया पे एक नंबर पे है। सबसे बड़ी जो फख्र की बात है, सिख कौम के आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिर झुकाते हैं। चाहे लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, एक तरफ कहां बैठे थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति के साथ। चाहते तो गोली चल सकती थी, उन्होंने कहा मेरे सिख भाई पे को लाठी न चले ना गोली न चले, पुलिस रोलते रहे, पुलिस वालों को नीचे उठाते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब आप उसके बावजूद उसको आप कमजोरी समझ लो, किसान आंदोलन के बाद कमजोरी समझ लो कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर पे पीला परना बांध करके गुरु महाराज का कहा मुझे क्षमा कर दो। क्या 84 के दंगे हुए, किसी ने क्षमा मांगी? नरेंद्र मोदी जी ने। चलो आपका कानून नहीं सही बैठता, पर आप क्या उनकी कमजोरियों को गलत फायदा लेते हैं? अगर कोई सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई पॉलिटिकल पार्टियां आपके आगे सिर झुकाती हैं या हरमंदर साहब में हर कौम सिर झुकाती है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि कोई डर गया। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो मुद्दा उठाया खालिस्तान का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनका स्टैंड तो अभी भी सॉफ्ट रहा है, किस तरह से लड़े? किनका? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पंजाब में हम राजनीतिक लोगों ने वोट की खातिर बर्बाद किया, आज तक ठीक नहीं हुआ। इसी तरीके से यही खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं तो अगर लड़ाई होगी किसी भी तरीके से तो हम तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान इस बात पे है, हम अपने देश के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं करते जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के अंदर उस देश को तोड़ने की कोशिश करे। पर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे दूसरी कंट्री, उनको क्यों शेल्टर दें? ये उन कंट्रियों का काम है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए।